हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवाज अच्छे से गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने लैब असाइनमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, डीप लर्निंग के 3 असाइनमेंट्स और वाइवा के क्वेश्चंस मैंने दे रखे आईएसआर के। तो जिनके भी बाकी है वो यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो अब जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे हमारे एनसेम की प्रिपरेशन के लिए। तो जिसमें मैं फर्स्ट जो है कवर करूँगा आईएसआर और डीएल के थ्योरी लेक्चर्स फ्रॉम यूनिट 3 ऑनवर्ड्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे एंड सेम के पहले मैं एटलीस्ट 2 यूनिट्स कवर कर सकूँ। बट पता नहीं आपके एग्ज़ाम की डेट्स क्या है, तो तब तक हम जितना हो सके उतना कवर करेंगे। सो आई रिकमेंड यू टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एसपीएम एंड द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स because I'll most probably I'll upload videos for the ISR and DL, and if time permits I'll upload the videos for the SPM and in electives for wireless and smart computing. Okay, but if possible. Okay, so I cannot tell you confirm for electives and SPM, so you can start preparing them from your side. And mostly your end sim will be in the third week, that is from 12 December or 15 December onwards. So we'll get a detailed timetable of that before 10 to 15 days of our actual exam. So in this video, I'll start with the ISR Unit 3 Lecture 1 video. So before that, if you are new to the channel, please subscribe the channel. Share this channel with your friends so that they will also refer these videos. Okay, so let's start with the video. Okay, so Unit 3 of Information Storage and Retrieval is Evaluation and Visualization of Information Retrieval System. So in this video, we'll cover the topic of precision and recall, which is a subtopic of performance evaluation. So let's go through the table of content or the syllabus content of Unit 3. So basically, we have two subtopics, two main parts in this unit. So first is performance evaluation, and under that we have subtopics such as precision and recall, MRR, F-score, NDCG, and user-oriented measures. So these 5 topics are under performance evaluation. Then second topic we have is the visualization in information system. So in that also we have some subtopics that also we'll see in the further lectures. So for this video I'll only cover the precision and recall subtopic, which is of the performance evaluation. So before directly moving to the precision and recall, we'll first understand what exactly the performance evaluation means. So from the name only we can understand that evaluation of a particular system or a performance is nothing but performance evaluation, right? So yeah, I have to explain the videos in Hindi as well as in English so that most of the students will be able to understand. Okay, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट करना, उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसे हम, मतलब क्या हो सकता है परफॉर्मेंस? तो हाउ मच द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट टू द यूजर नीड्स और सर्च इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस। तो सपोज आपने कुछ क्वेरी डाली है गूगल के सर्च बार में, तो आपको जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होंगे या फिर आप बोल सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे वो आपके कितने काम के हैं या फिर यूजफुल है, उसी से हम जो है परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद इफ द रिजल्ट्स आर रिलेवेंट टू द यूजर नीड्स देन आवर सिस्टम हैज अ गुड परफॉर्मेंस। तो जो भी रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वो आपके काम के हैं या फिर यूजफुल है, तो हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। द इवैल्यूएशन ऑफ अ सिस्टम परफॉर्मेंस इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये जो है मैंने जस्ट रफली डेफिनेशन की है, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द प्रिसिजन एंड रिकॉल। फिर उसमें भी प्रिसिजन एंड रिकॉल को अच्छे से जानने के लिए या फिर टू गेट क्लियर आइडिया अबाउट द प्रिसिजन एंड रिकॉल, वी हैव टू हैव सम idea regarding the results that we get. Okay, so whenever we are trying to search for a particular query or search for a particular information on a topic, then whatever the documents present inside the total database or in the collection and the results that you are getting can be divided into 4 categories. Okay, so now what are those categories? So first is relevant and retrieved. So whatever the documents are in the database, from them the relevant documents are retrieved. Okay, so the documents which are displaying or showing is shown to you in the output screen, those are relevant and retrieved. Then second case, maybe they are relevant but they are not retrieved.
documents are present in the database but they are not retrieved. Third is non-relevant and retrieved. The documents which are in the database but they are not relevant or they are not useful to you, but they are still shown to you. So this is nothing but non-relevant and retrieved. And fourth is non-relevant and not retrieved. So which are not useful and they are not retrieved. सो जब भी हम कुछ क्वेरी डालते हैं सर्च बॉक्स में या फिर गूगल पे, तो जो भी हमारे डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड्स है या फिर आइटम्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी बोलो, वो और आपको जो रिजल्ट्स डिस्प्ले होता है वो जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट जो है वो है रेलिवेंट एंड रिट्रीव्ड. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई मतलब डिस्प्ले हो रही है वो आपके काम की है और वो रिट्रीव भी होगी. सेकेंड है कुछ डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस में या फिर कलेक्शन में रेलेवेंट है या इसका मतलब क्या कि वो आपके काम की है पर वो रिट्रीव नहीं है, नहीं हुई या फिर आपको डिस्प्ले नहीं की हुई. थर्ड है नॉन रिलेवेंट एंड रिट्रीव. जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में है उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं है पर वो आपको डिस्प्ले किए है, उसी का मतलब होता है नॉन रिलेवेंट एंड रिट्रीव. और फोर्थ जो होता है वो है नॉन रिलेवेंट एंड नॉट रिट्रीव, जिसका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस के अंदर है वो आपके काम के नहीं है और वो आपको दिखाई भी नहीं दे या फिर डिस्प्ले नहीं किए गए. ठीक है, ये 4 कैटेगरीज में हमारे रिजल्ट्स को या फिर टोटल डेटाबेस के कलेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रिलेवेंट आइटम्स क्या होते हैं. सो रिलेवेंट आइटम्स और दोज आइटम्स और रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्चुअली यूजफुल टू द यूजर और विच आंसर्स द यूजर क्वेरी. ठीक है, तो आपने सपोज सर्च में डाला है कि एंड्रॉयड फ़ोन, तो आपको जो भी रिजल्ट्स दिखाई देंगे वो एंड्रॉयड फ़ोन के होने चाहिए. ओके, मतलब वो आपके काम के रहेंगे. अगर वहाँ पे आपको लैपटॉप दिखाई देगा या फिर आपको वहाँ पे सपोज टैबलेट दिखाई देगा तो आपके काम का नहीं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन रिलेवेंट. और जो आपके काम का है या फिर आपने जो क्वेरी डाली है उससे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेवेंट आइटम्स. और नॉन रिलेवेंट मतलब आइटम्स और दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट यूजफुल और डू नॉट प्रोवाइड द एक्चुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर. मतलब जो आपके काम की नहीं है वो अगर आपको दिखाई दे रहे तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिलेवेंट आइटम्स. फिर उसके बाद जो भी आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है मतलब या जो भी डॉक्यूमेंट्स है कलेक्शन के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर, वो 2 पॉसिबिलिटीज है उनके पास. एक तो वो आपको दिखाई देंगे मतलब डिस्प्ले किए जाएंगे और सेकेंड है वो आपको डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे. तो जिसको डिस्प्ले किए जाएंगे उसको हम बोलते हैं रिट्रीव, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे या फिर डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे उनको बोलते हैं नॉन रिट्रीव या फिर नॉट रिट्रीव. तो ये है प्रिसीजन एंड रिकॉल के लिए कुछ हमें प्री रिक्विजिट आप बोल सकते हो. फिर उसके बाद हम एक्चुअली मूव करेंगे हमारे प्रिसीजन एंड रिकॉल पे. तो उसके पहले हम एक वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको प्रिसीजन एंड रिकॉल के जो भी फॉर्मूलेज है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे. तो यहाँ पे आप कंसिडर करो हमारे पास 2 वेन डायग्राम्स हैं, सॉरी 2 सेट्स हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 सेट्स हैं. ये जो ब्लू वाला है वो एक और ये जो येलो वाला है वो एक. तो इन दोनों सेट्स को अब हम नाम देंगे. तो ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ आइटम्स रिट्रीव. तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है ओके रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स है ओके जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड होंगे, अब वो रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है वो हम बाद में देखेंगे. बट आप ये ध्यान में रखो कि जो भी येलो पार्ट है वो क्या है हमारा सेट ऑफ आइटम्स रिट्रीव्ड, और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा द सेट ऑफ रिलेवेंट आइटम्स इन द डेटाबेस. अब डेटाबेस में जितने भी रिलेवेंट आइटम्स है उनका सेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्लू वाला. ठीक है, ये हो गया. येलो वाला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ आइटम्स रिट्रीव्ड, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो डिनोट कर रहा है द सेट ऑफ रिलेवेंट आइटम्स इन द डेटाबेस. तो जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे डेटाबेस में वो सभी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लू वाला सर्कल. Okay, so for precision and recall we have to understand first Venn diagram so that it will be helpful for you to understand the formulas. So first we have 2 circles, yellow and blue part. So in the yellow part we have the set of items retrieved. So whatever the documents or the records that will be retrieved will be denoted by this yellow part.
and this blue part will denote the set of relevant items in the database. So whatever the total number of relevant documents will be there inside the database, that will be represented by this blue part. Okay, so now we'll see. Okay, here only we discuss about the retrieval, but we haven't discussed whether these retrieved documents are relevant or not. So that we'll discuss in this diagram. So here also I have two circles, blue and yellow part. So this yellow part from here, this yellow part, okay, so from here total part, okay, so I'm not able to draw it correctly, but this whole yellow part from here onwards, okay, so this is nothing but irrelevant items which are retrieved, because yellow part denotes the retrieved documents, right? So now this part, only yellow part, okay, so this part, moon like structure, denotes the irrelevant documents but they are retrieved. Okay, then second part we have is this, that is blue part from here onwards. Okay, so from here, okay, so this part is nothing but the relevant items which are not retrieved, because a retrieval part is only denoted by the yellow circle, right? So this blue part which is not present in the yellow part is nothing but relevant items which are not retrieved. Okay, now third part will left with, okay, so now third part we left with only this intersection part, right? We have seen about this part, we have seen about this part, now we'll only left with this eye like shape structure, right, which is the intersection of this yellow and blue part. So this part is nothing but the relevant items which are retrieved, obviously, because this blue part denotes the items which are retrieved, relevant items, right? This part denotes the set of retrieved documents. Now the intersection of this will be the set of relevant and retrieved documents, and which is nothing but this part, relevant items which are retrieved. Okay, so see, in this diagram we have two parts. Okay, so this diagram I have explained already, but still I'll explain it once more. ये जो येलो पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सब रिट्रीव हुए, और ये जो ब्लू पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके डेटाबेस में है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उनका ये सेट है। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड डायग्राम है उसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे ये नहीं किया कि ये रिलेवेंट है या इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बस हमने क्या बोल दिया कि ये जो येलो पार्ट है वो डिनोट कर रहा है कि रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे कि इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा। ठीक है, तो ये जो येलो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा हाफ मून, तो ये जो पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, इररिलेवेंट आइटम्स बट दे आर रिट्रीव्ड। ओके, इररिलेवेंट है। और ये जो येलो ब्लू पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेफ्ट साइड से हाफ मून, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, रिलेवेंट आइटम्स बट दे आर नॉट रिट्रीव्ड। ठीक है, ये रिलेवेंट है बट ये रिट्रीव नहीं हुए, या फिर आपको यूजर को दिखाई डिस्प्ले नहीं किए गए। ठीक है, और अब ये जो मिडिल पार्ट रहता है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये जो है ये था हमारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का, ये था हमारा रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स का, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिलेवेंट आइटम्स और वो रिट्रीव भी हुए, तो ये जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपने एक दो बार अगर इसको ड्रा किया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जिसमें अब हम देखेंगे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन जो है वो है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिलेवेंट एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो जो रिट्रीव भी किए होंगे उनको आप लिखोगे न्यूमरेटर में, और टू दी टोटल नंबर ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स बोला है मैंने, यहाँ पे वो इररिलेवेंट भी हो सकते हैं और रिलेवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, आप डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है प्रिसीजन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड, मतलब जो भी आइटम्स रिट्रीव हुए हैं उसमें से रिलेवेंट आइटम्स, या फिर आप बोल सकते हो रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड एंड इररिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड। तो ये भी आप यहाँ पे डेफिनेशन में ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। तो अब रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में दो हो सकते हैं, एक तो वो रिलेवेंट हो सकते हैं या फिर वो इररिलेवेंट हो सकते हैं। तो दोनों को हमने जो है यहाँ पे कंबाइन किया। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड एंड इररिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड। अब ये ए अपॉन ए प्लस सी है क्या लिखा है मैंने, वो आपको यहाँ पे वेन डायग्राम की हेल्प से पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने सर्कल देखे थे पिछले वेन डायग्राम में वही है। यहाँ पे जो ए पार्ट है वो क्या है हमारा, ये जो रिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट भी है और वो रिट्रीव भी हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, उसको मैंने डिनोट किया है ए से। तो यहाँ पे आ गया ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड। तो रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड कौन से हुए हमारे, ए वाले ही, राइट, क्योंकि ये जो पार्ट है वो है हमारा रिलेवेंट आइटम्स बट दे आर नॉट रिट्रीव्ड, और हमारे डेफिनेशन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड। तो रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड कौन से सेक्शन में होंगे, ये इंटरसेक्शन के सेक्शन। तो ये आ गया ए प्लस इररिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव। तो इररिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव कौन से थे हमारे इसमें, ये सी वाले, राइट, ये जो राइट वाला हाफ मून है वो, तो उसको मैंने डिनोट किया है सी से। तो ए अपॉन ए प्लस सी और इंटू 100 क्यों किया है मैंने, क्योंकि जो है प्रिसीजन और रिकॉल जो है ये परसेंटेज के फॉर्म में डिस्प्ले किए जाते हैं, या फिर उनको क्या बोलते हैं आप, मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में, मुझे वो वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिख दिया है ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड और नंबर ऑफ इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड। तो अब आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा वो जो फॉर्मूला हमने लिखा है। तो यही है प्रिसीजन के बारे में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो है सेकंड रिकॉल, तो रिकॉल की डेफिनेशन जो है वो है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रिलेवेंट एंड रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स टू दी टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द डेटाबेस। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो, न्यूमरेटर सेम रहेगा नंबर ऑफ रिलेवेंट एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, बस जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द डेटाबेस। तो हमारे डॉक्यूमेंट डेटाबेस में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आएंगे, फिर उसमें से हमने रिट्रीव किए हैं या नहीं किए वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, रिकॉल जिसे आर से डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स। तब इसके लिए वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव वो सेम था ए, जो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट था। तो ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट आइटम्स। तो रिलेवेंट आइटम्स कौन से हमारे, ये पूरा सर्कल है, राइट, ये पूरा सर्कल है। तो इस पूरे सर्कल को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन के पार्ट को ए से डिनोट किया है। तो जो भी लेफ्ट बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने बी से डिनोट किया। तो ये हमारा जो येलो पार्ट है वो टोटल अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी को मिला के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। इसको भी 100 ही किया है क्योंकि ये भी जो है परसेंटेज के फॉर्म में परसेंटेज के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, या फिर यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे ए और बी का भी मैंने लिख दिया है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड एंड बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट रिट्रीव्ड। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हमने प्रिसीजन देख लिया, रिकॉल देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रिसीजन और रिकॉल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो द प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम रिकॉल फॉर अ क्वेरी रिक्वायर्स डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन। ठीक है, जब भी हमें रिकॉल की वैल्यू अगर बढ़ानी है या फिर मैक्सिमम चाहिए, तब हमें जो भी डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, कलेक्शन के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है, आइटम्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम रिकॉल की वैल्यू जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिकॉल में हम क्या करते हैं, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है मैक्सिमम उनको
डिस्प्ले कर दे, राइट। तो उसका नॉलेज अगर हमारे पास कम है तो हम जो है रिकॉल की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। तो वही प्रॉब्लम है एक, क्योंकि हमारे पास पूरे डेटाबेस के अंदर की डिटेल नॉलेज नहीं होती किसी भी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन मैनी सिचुएशन द यूज ऑफ सिंगल मेजर आइदर प्रिसीजन और रिकॉल कुड बी मोर एप्रोप्रिएट। किसी केस में हमें प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी केस में हमें रिकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम उस केस में उस पर्टिकुलर मेजर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉल एंड प्रिसीजन मेजर द इफेक्टिवनेस ओवर अ सेट ऑफ क्वेरीज प्रोसेस्ड इन अ बैच। तो ये जो भी रिकॉल और प्रिसीजन है ये बेसिकली मेट्रिक्स है हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये जो भी मेजर करता है इफेक्टिवनेस या फिर आप बोल सकते हैं इवेल्युएशन, वो सेट ऑफ क्वेरी जो भी देंगे आप उसी को, पूरे क्वेरी को एक साथ प्रोसेस करेगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर प्रोसेस नहीं करेगा, उसको एक साथ पूरा प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद फॉर सिस्टम्स विच रिक्वायर अ वीक ऑर्डरिंग दो रिकॉल एंड प्रिसीजन माइट बी इनएडिक्वेट। तो किसी केस में जब हमें वीक ऑर्डरिंग मतलब वीक ऑर्डरिंग होती है तब हमें रिकॉल और प्रिसीजन जो है कम पड़ सकते हैं। तो यही है इसके कुछ प्रॉब्लम्स। ये कुछ मैंने 4 से 5 प्रॉब्लम्स लिखे। अगर पूछा जाए या फिर आपको एग्जाम में आ भी जाए कि एक्सप्लेन प्रिसीजन एंड रिकॉल या फिर एक्सप्लेन द मैट्रिक्स टू फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम या फिर फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ आईआरएस, तब आप ये लिख सकते हो। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन के पहले आप जो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्शन के अंदर है वो, और आपके आउटपुट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्प्ले होंगे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप वेन डायग्राम्स निकाल सकते हो 2। फिर उसके बाद आप एक्चुअल प्रिसीजन और रिकॉल को एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के लिए जो भी कंटेंट था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, वीडियो के कंटेंट कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वाले वीडियोस में जो है हम सेकंड जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पॉइंट है वो कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।